Trying to conceive but unsuccessful? Have been advised IVF or IUI? Want a healthy and intelligent baby? Join us to fulfill your dream of becoming parents. A free expert guidance program on holistic IVF and IUI, scientific and spiritual approach, golden steps for successful IVF and IUI, daily online live sessions by expert medical doctors and spiritual teachers on decoding journey of IVF, tips for successful IVF, stress management, emotional well-being, fertility boosting diet, exercise and pranayam, counseling, meditation, sleep management, art therapy, music therapy, instrumental music meditation, value stories, Gita Gyan and scriptures, Ayurvedic and naturopathy detoxification, Garbhadhan. Starting from 1st November, meet us virtually from Monday to Saturday between 8 to 9 p.m. and Sunday between 11 a.m. to 12 p.m. Live on Zoom and YouTube channel Holistic IVF. Zoom meeting ID 919-519-84746. Password happiness. For more details, call us on 9158 927 937 or 98206 16509 or 9833 801 570. You can mail us on holisticivf@gmail.com. Visit us on www.divinegarbhasanskar.in. Subscribe to our YouTube channel, Holistic IVF. Organizers, Medical Wing Brahmakumaris, Divine Sanskar Research Foundation. Om Shanti. Warm welcome to all of you in our today's session, Holistic IVF and IUI, a scientific and spiritual approach में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो सेशन है उसका टॉपिक है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन IVF एंड IUI और आज हमारे साथ हमारे स्पीकर जुड़े हुए हैं बीके डॉक्टर सुनीता मैम. She is an IVF consultant and Raj Yoga practitioner. Before we are going to start our session, I would like to introduce Dr. Sunita ma'am. She is the MBBS, DGO, DNB, DFP, PGDHA, DPH fellow in infertility. She is a practicing OB and with a interest in infertility at Haveri since 2000. She did her UG at Miraj Medical College and PG at Jain MC Belgaum, now running a 60-bedded hospital and IVF center at Haveri. She is a member of Medical Wing of Brahma Kumaris since 2009 and regularly teaching meditation, especially to patients since 8 years. She is conducting various programs for awareness on Garbhasanskar, de-addiction, cancer, stress management, and infertility in association with BKs and Rotary Club. तो आज के हमारे सेशन में हम डॉक्टर सुनीता मैम का बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं. मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस. सभी पार्टिसिपेंट्स का भी आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है. और आज हमारा जो टॉपिक है इसमें आप सभी पार्टिसिपेंट्स भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. अगर आप मैम से डायरेक्टली बात करना चाहते तो वैसे बता सकते हैं, तो हम आपको अनम्यूट भी करेंगे. और हमारे पास क्वेश्चन की लिस्ट भी है जिसमें
पेशेंट्स के जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस होते हैं पूछे जाते हैं, तो 1 बाय 1 करके हम मैम से आंसर्स भी सुनेंगे। थैंक यू। ओवर टू यू मैम। Thank you. Om Shanti. Am I audible? यस मैम, यस। Om Shanti. सबसे पहले मैं डिवाइन होलिस्टिक IVF IUI टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ये पहले I just want to introduce you regarding this holistic IVF program. Actually, this program is very close to my heart क्योंकि ये प्रोग्राम IVF एक ऐसी जर्नी है जिसके अंदर पेशेंट फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली स्ट्रेस से गुजरता है। तो डॉक्टर पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन ये थोड़े निग्लेक्टेड एरियाज है जिसको एड्रेस नहीं किया जाता। सो इट इज अ नीड ऑफ द आवर। सो ये प्रोग्राम के माध्यम से सभी पेशेंट लोग उसका बेनिफिट ले सकते हैं और ये जो अनएड्रेस्ड एरिया है विच कैन बी वेरी वेल टैकल्ड। ये IVF प्रोग्राम में 2 फैमिलीज स्ट्रेस से गुजरती है, लड़की की फैमिली एंड लड़के की फैमिली, इन लॉज की फैमिली, दोनों फैमिली स्ट्रेस के गुजरती जाती है। क्या होगा आगे, बच्चा होगा नहीं होगा, कैसा होगा, throughout the process they will be in the stress, so it is very very important. And lastly, it is a very divine thing to create a baby and give baby to the couple जो लोग naturally conceive नहीं हो पा रहे। So it is a very very good program and I request all the patients to all the people to take opportunity of this program. Thank you so much. Om Shanti. I'll start the program. ओके मैम। सो आप सभी पार्टिसिपेंट्स मैम से पूछना चाहेंगे सबसे पहले, या फिर मैं एक एक क्वेश्चन जो हमारे पास आए हैं मैम वो आपसे एक एक करके पूछूं? पहले आप क्वेश्चंस पूछ लो, फिर एंड में मुझे लगता है किसी को कुछ एक्स्ट्रा डाउट है तो दे कैन आस्क। ओके ओके ओके, श्योर। तो पहला क्वेश्चन है, which couple or patient should directly enter into for IVF? मीन्स कौन से पेशेंट्स जो IVF में डायरेक्टली जा सकते हैं, उनके पास IVF का ऑप्शन होता है, ऐसे कौन से पेशेंट्स होते हैं? फर्स्ट मुझे पहले बोलना है कि कोई भी पेशेंट फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए पहले कब जाना चाहिए। सी कोई भी कपल शादी के बाद में विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर, इफ दोनों अगर साथ में रह रहे हैं, नेचुरल इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो 1 साल के अंदर उनको प्रेगनेंसी ठहरनी चाहिए। अगर 1 साल में वो लोग नेचुरली कंसीव नहीं हो रहे तो उनको फर्टिलिटी कंसल्टेंट को कंसल्ट करना चाहिए। तो अगर लेडी फीमेल पार्टनर की एज 35 के अबोव है तो ये 6 मंथ्स का क्राइटेरिया हो जाता है। 6 महीने तक दे कैन ट्राई नेचुरली, 6 महीने में नहीं होगा तो उनको ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। जब एक कपल डॉक्टर के पास जाता है ट्रीटमेंट के लिए तो उनका सोनोग्राफी होता है, उनके हार्मोन्स इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस किया जाता है, बेसिक इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और उनको ओव्यूलेशन इंडक्शन बोलते हैं हम लोग, जैसे फॉलिकुलर स्टडी करके एग बनाने के लिए ड्रग दिए जाते हैं और टाइम पे टाइमली इंटरकोर्स बोला जाता है। ऐसे 2 से 3 महीना उनको ट्रायल दिया जाता है। वो टाइम पे अगर वो कंसीव हो गए तो ठीक है, अगर नहीं हुए तो फिर उनकी ट्यूब टेस्ट की जाती है, जैसे लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी करके उनकी ट्यूब पैटर्न ठीक है चेक किया जाता है और अगर उसमें प्रॉब्लम है, ट्यूब में अगर प्रॉब्लम है तो देन दे विल गो फॉर IVF। तो इट इज नॉट अ फिक्स्ड प्रोटोकॉल, इट डिपेंड्स अपॉन द टोटल, इट इज अ टेलर मेड प्रोटोकॉल अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, डिपेंड ऑन द पेशेंट की एज, उसका AMH हस्बैंड फैक्टर, उसका सीमेन एनालिसिस काउंट क्या है, अदर एसोसिएटेड फैक्टर, ये सब चीज से होके एक रेसिपी बनाई जाएगी फॉर द पेशेंट। सो इट इज अ टेलर मेड, इट इज नॉट फिक्स्ड। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से पेशेंट को डायरेक्टली IVF को जाना चाहिए, जो पेशेंट को क्लियर कट पता है कि उनकी दोनों ट्यूब ब्लॉक्ड है, हस्बैंड मेल फैक्टर है, हस्बैंड का स्पर्म काउंट एकदम कम है, मतलब लेस देन 5 मिलियंस है, और सीवियर एंडोमेट्रोसिस ग्रेड 3 ग्रेड 4 है, AMH लेवल बहुत लो है, AMH मतलब एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये ब्लड टेस्ट फीमेल पार्टनर का एग नंबर ओवरी में जितने एग है उनका नंबर दिखाता है। आई मीन इट इज अ पैरामीटर विच इज शोइंग द एग्स इन द फीमेल पार्टनर। सो AMH अगर लो है, लो मीन्स लेस देन 1 सपोज, और एज मोर देन 35 है, तो ऐसे लोगों को आई थिंक दे शुड गो डायरेक्टली फॉर द IVF विदाउट वेस्टिंग मच टाइम।
Thanks, ma'am. Second question is, when should a couple seek for fertility treatment? वही जो अभी आपने बताया. हाँ, इसका मैंने जी. जवाब पहले दे दिया कि जब हाँ. 1 साल के अंदर नेचुरल में नहीं होता है आफ्टर मैरिज, अगर अगर वो फीमेल पार्टनर की एज मोर देन 35 है तो 6 महीना है. 6 महीना ओनली दे कैन ट्राई, अदर देन दैटली दे शुड कंसल्ट डॉक्टर. जी मैम. Next question is, what is option for unmarried females for fertility preservation? Unmarried females के लिए fertility preservation का कोई ऐसे ऑप्शन होता है, मतलब करना है? सी आजकल लड़कियां पढ़ाई पहले से मतलब आई मीन दे आर वेरी मच करियर ओरिएंटेड पढ़ाई करती है, तो बाय द टाइम दे फिनिश देयर एजुकेशन उनकी एज ऑलरेडी ज्यादा हुई रहती है. कोई भी लेडी की लाइफ टाइम में हर पीक ऑफ फर्टिलिटी इज 25 इयर्स. तब जबकि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स विल बी स्टडिंग, वो पढ़ाई करती रहती है, उनका करियर का भी वो पीक चलता रहता है. बाद में अराउंड 30 दे विल गेट मैरिड, और बाद में जिंदगी सेटल होने के बाद में फिर वो सोचेंगे कि हाँ में बच्चा चाहिए. सो बाय दैट टाइम देयर एज विल बी 35. फिर वो लोग जब सोचते हैं मुझे बच्चा चाहिए, तब ऑलरेडी उनका एज हुआ रहता है, एज कम हो जाता है, तभी वो उनको बच्चा चाहिए. सो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर देम. सो जैसा ही हम लोग आजकल इंश्योरेंस कराते हैं कि आगे सेफ्टी के लिए, ऐसा ही अनमैरिड गर्ल्स उनके एग्स प्रिजर्व कर सकते हैं, फ्रीज करके रख सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज oocyte फ्रीजिंग. तो सॉरी, उनको जब वो लोग कोई हायर स्टडीज के लिए पढ़ाई के लिए अब्रॉड जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, या उनका भी शादी का इरादा नहीं, दे वांट टू पोस्टपोन प्रेगनेंसी, व्हेन दे विल गेट partner at right time, they are waiting, there is a time for them, they want to wait. तो सेफ्टी साइड वो लोग अपना oocyte फ्रीज करके रख सकते हैं. दूसरी चीज एक्चुअली oocyte फ्रीजिंग इज इनफैक्ट मोर इंडिकेटेड इन केस ऑफ ऑन्कोफर्टिलिटी. एक्चुअली गायनेकोलॉजी में जो लड़कियों को कोई लेडीज को यंग एज में कैंसर हो जाता है, जैसे ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, अगर छोटी एज में हो गया है, तो बिफोर गोइंग फॉर द कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जिकल ट्रीटमेंट, तो उन जाने के पहले उनका oocyte freeze किया जाता है. So these are the main two indications for the oocyte freezing in unmarried female. It is very much available, and I think according to your requirement, according to your problem, I think you should go for that. तो उसका एडवांटेज लेना चाहिए. मैम फिर ये फ्रेश या फ्रोजन जो एग्स है उससे जो बेबीज होंगे, क्या वो सेफ होता है, गुड होता है, हेल्दी, या कुछ ऐसे उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा? नहीं, एक्चुअली आजकल तो ज्यादातर साइकिल्स, मोस्ट ऑफ साइकिल्स, एक्चुअली मोर देन 90% साइकिल्स फ्रोजन एम्ब्रियो से ही किए जाते हैं. मतलब कैसा, फ्रोजन एम्ब्रियो और फ्रेश साइकिल, दो टाइप के साइकिल रहते हैं. फ्रोजन में मतलब कैसा होता है, वी कॉल इट सेगमेंटल आईवीएफ. मतलब पहले फीमेल पार्टनर को जैसे इंजेक्शंस देके स्टिमुलेट किया जाता है, उनके एग बनाए जाते हैं, मल्टीपल एग्स ओवरी में तैयार होते हैं, फॉलिकल्स, और बाद में ओवम पिकअप हम लोग बोलते हैं, जिससे नीडल से एस्पिरेट करके वो oocyte निकाला जाता है बाहर, और बाद में हस्बैंड के स्पर्म के साथ में फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बच्चे बनाए जाते हैं. तो वो बच्चे डे 3 डिपेंड्स कितने बच्चे बने हैं उसके हिसाब से तीसरे दिन या 5वें दिन तक उनको ग्रो किया जाता है, और बाद में उनको फ्रीज किया जाता है. फ्रीज मतलब जैसे जो स्टेज है डेवलपमेंटल की, जो स्टेज है वो एम्ब्रियो की, वो स्टेज में वो फ्रीज हो जाते हैं, मतलब जैसे पॉज हो गया, वो स्टेज में रह जाते हैं. जब हम लोग बाद में उनको थॉ बोलते हैं, हम लोग जैसे गर्म के नॉर्मल टेम्परेचर को लिया जाता है, जैसे फ्रीजिंग हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में -70 डिग्री सेल्सियस में उनको रखा जाता है. जब उनको थॉ किया जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर लाया जाता है, तब वो जो स्टेज में वो फ्रीज हुए थे, उसके बाद में आगे उनकी ग्रोथ कंटिन्यू होती है. ऑलमोस्ट 70 to 80% रिकवरी होती है. इट इज लाइक जैसे हम लोग कोई सीजन आता है, हम लोग मटर फ्रीज करके रखते हैं, या कुछ मकई, अगर जो सीजनल जो भी हमारे फ्रूट्स वगैरह अवेलेबल, उनको फ्रीज करके डीप फ्रीजर में रख देते हैं, और जब हमको चाहिए तब उनको हम बाहर निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर पे लाके यूज करते हैं. तब के साथ एक दो चार, जैसे मटर हुआ, 2-4 खराब हो जाते हैं, थोड़े रह जाते हैं, 70 to 80% रिकवर होता है. इट इज सेम लाइक दैट. थोड़ा 70 to 80% विल रिकवर एंड रिमेनिंग विल गो अवे. तो फ्रोजन साइकिल ऐसा किया जाता है. डे 3 भी कर सकते हैं, डे 5 भी कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द सेंटर्स डे 5 का वी कॉल इट ब्लास्टोसिस्ट, वो किया जाता है. तो एक्चुअली फ्रोजन साइकिल में सक्सेस रेट इज मोर,
एक्चुअली। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि हम लोग पेशेंट को स्टिमुलेट करके एग निकाला रहता है और बेस्ट जो एग्स है वो फ्रीज किया जाता है, और नेक्स्ट मंथ में जब पेशेंट टेंशन फ्री है, रिलैक्स है, तभी हार्मोनल साइकिल HRT या मॉडिफाइड नेचुरल साइकिल हम लोग बोलते हैं, पेशेंट को हम लोग उनका एंडोमेट्रियम यूट्रस बनाया जाता है। तो यूट्रस बनाने के बाद, यूट्रस का एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनाने के बाद में जब वो प्रॉपर है, व्हेन वी इंश्योर दैट कि एवरीथिंग इज फाइन, उसका ब्लड सप्लाई अच्छा है, सब अच्छा है, जब बेस्ट कंडीशंस पॉसिबल है, जब समझ में आता है, दैट टाइम एम्ब्रियो को थॉ किया जाता है, तो अंदर डाला जाता है। तो बेस्ट एम्ब्रियो हो गया तो बेस्ट एंडोमेट्रियम देख के डालते, तो इसका सक्सेस रेट डेफिनेटली एज कम्पेयर टू फ्रेश साइकिल ज्यादा है, और इस पे बेबी पे कुछ असर नहीं पड़ता है। और दूसरा फ्रेश साइकिल रहता है। फ्रेश साइकिल मतलब कैसा होता है, जैसे सेम साइकिल में पेशेंट को स्टिमुलेट किया, एग निकाले, बेबी बनाए, और बाद में 3 दिन के बाद में या 5 दिन के बाद में वो एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फ्रेश साइकिल में अगर उनके नंबर ऑफ एग्स ज्यादा हुए हैं तो उनको हाइपर स्टिमुलेशन होने का चांस रहता है, वो एक रिस्क रहती है। सेकंडली, वो साइकिल में हम लोग मदर को इंजेक्शंस दिया जाता है, तो उसकी वजह से जैसे हम लोग बोलते हैं कि सुपरा फिजियोलॉजिकल लेवल ऑफ एस्ट्रोजन रहता है ब्लड में, तो वो हार्मोन लेवल सब डिस्टर्ब हुआ रहता है, उसकी वजह से इम्प्लांटेशन में थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। इसलिए एक्चुअली फ्रोजन साइकिल इज अ बेटर व्हेन एवरीथिंग इज फाइन, मदर कूल है, आराम से जब उसका एंडोमेट्रियम रेडी है, वी कैन डू इट इजीली, आई मीन विदाउट एनी टेंशन। सो आजकल तो मोस्ट ऑफ द साइकिल्स आर फ्रोजन साइकिल ओनली, and it gives a better result, definitely better result as compared to fresh cycle. ओके मैम, तो जो आईवीएफ ट्रीटमेंट होती है उसमें कंप्लीट बेड रेस्ट करना होता है या नॉर्मल बिहेव कर सकते हैं, मतलब कैसे प्रोसेस में कैसे रहना चाहिए? एक्चुअली क्या होता है, आईवीएफ प्रोसेस में, थ्रू आउट प्रोसेस में, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 फैमिली स्ट्रेस में चलते हैं, जिसमें फिजिकल स्ट्रेस रहता है, मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल और फाइनेंशियल स्ट्रेस में से चलते हैं। तो इतना ये स्ट्रेस में गुजरने के बाद में फाइनेंशियल बर्डन भी फैमिली के ऊपर रहता है, तो at this point we don't want to take any type of risk, so normally generally we advise bed rest at least in the initial period of time, क्योंकि क्या होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के बाद में पहला एम्ब्रियो अंदर जाके चिपकता है एंडोमेट्रियम को, और हम लोग बोलते हैं कि जैसा देयर इज अ टॉक बिटवीन एंडोमेट्रियम एंड एम्ब्रियो, एम्ब्रियो और एंडोमेट्रियम के बीच में टॉक होता है, एंड इफ इट इज अ पॉजिटिव टॉक, then blood supply will start to the embryo and their implantation happens. So all these things are hormonal dependent condition, and it depends everything on the condition of the mother, especially mental condition of the mother and emotional level of the mother. So बेड रेस्ट हम लोग एडवाइस करते हैं, क्योंकि इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट है, आपने इतना खर्चा किया, सो वी डोंट वांट टू टेक एनी टाइप ऑफ रिस्क। तो कभी कभी क्या होता है, जब एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है तो भी उनको ब्लीडिंग हो सकता है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हम लोग बोलते हैं, थोड़ा स्पॉटिंग दिख सकता है। और आफ्टर प्रेगनेंसी ऑल्सो 1 मंथ 1 वीक 1.5 महीने में अगर पेशेंट को बीच बीच में स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकता है, सो इट इज ऑलवेज सेफ टू टेक बेड रेस्ट फर्स्ट। एंड सेकंडली, अगर थोड़ा बीच में स्पॉटिंग होता है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं, यू शुड कंसल्ट योर स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट डॉक्टर, एंड they will give treatment accordingly, you follow. I think whatever doctor is saying you follow blindly, क्योंकि ये नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसी प्रेगनेंसी को उसको तुम काउंट मत करो। काफी सारे पेशेंट हम लोग देखते हैं, वो बोलते हैं, हमारी मदर तो बोलती है, मदर इन लॉ बोलते हैं कि हमने तो कभी प्रेगनेंसी में रेस्ट नहीं किया, आजकल की लड़कियां बेड रेस्ट बोलती है। See, your pregnancy is completely hormone dependent and it is different pregnancy. It is a natural pregnancy. So you have to understand first the difference. So bed rest is actually very safe. I think you have to do bed rest at least in the initial period of time, क्योंकि chances of abortions are more in the first 5 months. 5 months, maybe first 3 months, like you have to take care. अगर हार्मोन का लेवल, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ऊपर नीचे होता है तो भी पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकता है, so it is better to take bed rest. ओके मैम, थैंक यू मैम। अगर जो ट्रीटमेंट है आईवीएफ की, तो इसमें कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है आईवीएफ ट्रीटमेंट के वजह से? See, what is IVF? IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब जो फर्टिलाइजेशन नॉर्मली अंदर होता है वो बाहर होता है,
सी नॉर्मली होता है अंदर, उसको इन विवो बोलते हैं, मतलब एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन मिलन होके बच्चा बनता है, जो नॉर्मली ट्यूब के अंदर बनता है नेचुरल प्रेगनेंसी में। वो जो अंदर बन रहे हैं वो हम लोग बाहर पेट्री डिश में एग और स्पर्म लेके उसको फर्टिलाइज करके बच्चा बना रहे हैं। तो एज सच इट इज लाइक सेम लाइक नेचुरल, बट अंदर की जगह हम लोग बाहर बना रहे हैं लैब कंडीशंस में, अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस वी आर मेकिंग अ बेबी। सो आइडियली जेनेटिक अबनॉर्मलिटी उसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा होने का चांस नहीं है, बट स्टिल अगर मदर की एज ज्यादा है, 35 के एज ऊपर एज है, या फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोई अबनॉर्मलिटी है, तो डेफिनेटली दैट चांस इज ऑलवेज देयर इवन इन नेचुरल प्रेगनेंसी। और जिनको अगर पहले की फैमिली हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक अबनॉर्मलिटी है, कोई डिसीज फैमिली में चलता है, ऐसा अगर हिस्ट्री है, तो आजकल पीजीटी अवेलेबल है, जैसे एम्ब्रियो की बायोप्सी की जाती है, और whether that embryo is healthy or not, it has been decided, पहले ही मालूम पड़ जाता टेस्ट करके कि ये नॉर्मल एम्ब्रियो है क्या, देन वी कैन पुट इट, बट इट इज अ वेरी कॉस्टली ट्रीटमेंट। बट एज सच पर से बिकॉज ऑफ आईवीएफ कोई जेनेटिक अबनॉर्मलिटी होने का चांस ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं। ओके मैम, जो एबॉर्शन होता है तो क्या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में कॉमन होता है एबॉर्शन, मतलब ऐसे पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है आईवीएफ में? से कोई भी नॉर्मल भी प्रेगनेंसी होती है, नेचुरल प्रेगनेंसी भी होती है, से इन द जनरली थंब रूल के साथ 30 to 40% प्रेगनेंसीज विल अबॉर्ट। 30 to 40%, मतलब आप समझ सकते हो, एक अगर 100 प्रेगनेंसी होती है तो 30 प्रेगनेंसीज अबॉर्ट हो जाएंगे। इसमें भी मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसीज आर लाइक तुमको प्रेगनेंसी है मालूम पड़ने के पहले ही अबॉर्ट हो जाता है, मतलब लाइक इट इज द टिप ऑफ आइसबर्ग, जो हमको दिखता है कितने अबॉर्शन है, लेकिन उससे ज्यादा अबॉर्शन आपको प्रेगनेंसी है मालूम पड़ने के पहले ही अबॉर्ट हो जाता है। तो अबॉर्शन का चांस 30 to 40% इट इज नोन। उसमें भी फर्स्ट 5 मंथ्स में अबॉर्शन का चांस ज्यादा रहता है, वो 5 मंथ्स में भी 3 मंथ्स में चांस ज्यादा होता है। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अबॉर्शन इन द फर्स्ट 3 मंथ्स आर क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी, जेनेटिक प्रॉब्लम अगर बेबी में है तो उसको अबॉर्शन का चांस ज्यादा रहता है। दूसरा प्रोजेस्टेरोन डेफिशिएंसी, हार्मोन डेफिशिएंसी, अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल थोड़ा भी कम हो जाता है तो पेशेंट को स्पॉटिंग चालू होकर ब्लीडिंग चालू हो जाता है। सो फर्स्ट 3 मंथ्स में अबॉर्शन का चांस डेफिनेटली ज्यादा रहता है। तो आईवीएफ में नेचुरल कंपैरिजन में आई थिंक लिटिल बिट ज्यादा, थोड़ा एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्रेगनेंसी थोड़ा चांस ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये इट इज completely dependent on the tablet hormones and injections. So per se it is a very precious pregnancy and you have to take extra care. You have to be on your toes till you get the baby. We count it as a take home baby rate. Not only pregnancy is important, take home baby rate is important. आपके हाथ में बेबी आने तक आपको संभालना है। जैसा कोई एक पेड़ है, वो पेड़ को, जैसा अभी कोई नारियल का पेड़ है, काफी सारे फल नारियल लगते हैं, लेकिन कोई कोई फल छोटे होके निकल जाते हैं, तो इसका मतलब वो पेड़ में प्रॉब्लम नहीं है, वो पेड़ को छोटे फल निकाल के निकल गए, लेकिन काफी सारे फल बड़े भी हुए हैं। तो ऐसा ही सेम वे प्रेगनेंसी काफी बार अबॉर्शन हो जाता है, इट डजंट मीन कि दे विल नॉट कंसीव, उनको वापस कंसीव होके फुल टर्म तक प्रेगनेंसी जा सकती है। सो इट इज अ वेरी नेचुरल फिनोमेनन। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो अबॉर्ट होता है, इट इज अ कॉमन रीजन इज जेनेटिक अबनॉर्मलिटी। सो बेबी नेचुरली फ्रॉम इनसाइड ओनली देयर वाज सम प्रॉब्लम, इनबॉर्न प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई इट अबॉर्टेड। सो व्हाटएवर हैपेंस दैट हैपेंस फॉर द गुड, पहली बात वो समझ। जी मैम, तो आईवीएफ ट्रीटमेंट के बाद मतलब अगर कंसीव हो गया तो डाइट और ट्रैवलिंग के लिए कोई स्पेसिफिक प्रिकॉशन लेना चाहिए? इसके लिए डाइट, अच्छा डाइट और ट्रैवलिंग जो होता है ओके। उसके लिए कोई पर्टिकुलर प्रिकॉशंस? सी ट्रैवलिंग तो डेफिनेटली हम लोग अवॉइड करने को बोलते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बोला कि चांसेस ऑफ अबॉर्शन आर देयर इन फर्स्ट 5 मंथ्स, तो ट्रैवलिंग डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। और हम नहीं भी बोले तो भी पेशेंट खुद भी अवॉइड करता है, क्योंकि उन्होंने इतना खर्चा किया रहता है, उतना सब स्ट्रेस में से गुजरते, तो वो लोगों को भी कोई रिस्क नहीं लेना रहता है, तो पेशेंट खुद भी ट्रैवल करना पसंद करता है एक्चुअली ये पीरियड में, एंड दे शुड डेफिनेटली अवॉइड ट्रैवल, देयर इज नो डाउट। सेकंडली डाइट, से प्रेगनेंसी में डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम लोग अब ये जैसे होलिस्टिक प्रोग्राम है, इसके अंदर जैसे हम लोग डाइट, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये सभी के ऊपर हम लोग ध्यान दिया जाता है। सी डाइट इट शुड बी लाइक सात्विक डाइट। सात्विक डाइट मतलब वेजिटेरियन डाइट,
जिसमें हाई प्रोटीन डाइट और जैसा मिल्क वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, जो भी नॉन वेजिटेरियन इंक्लूड नहीं है, ओनली वेज डाइट इज सपोज टू बी सात्विक डाइट, ठीक है। और डाइट मतलब ये खाली खाना इंपॉर्टेंट नहीं, वो खाना किस कंडीशन में बनाया गया, खाना बनाते टाइम बनाने वाले की मेंटल कंडीशन, बनाते टाइम उसमें हमारी जो वाइब्रेशंस गए वो इम्पोर्टेंट है। खाना खाते टाइम वो खाने को तुम जो वाइब्रेशन देते हुए थैंक्स बोल के खाना, पहले ग्रेटिट्यूड करते हुए हमको खाना खाना चाहिए, भगवान को याद करके, हाँ थैंक यू आज मुझे खाना मिला, थैंक यू फॉर एवरीथिंग व्हाट एवर आई एम हैविंग इन माय लाइफ, थैंक्स बोलते हुए वो खाना ग्रहण करे तो उसका इफेक्ट कुछ अलग ही होएगा, वो खाना ने एक प्रसाद जैसा तुम्हारे शरीर में जाएगा। तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, डाइट तो इंपॉर्टेंट है ही, तो डाइट के साथ में उसका इमोशनल लेवल और मेंटल लेवल भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, वो खाने के साथ में हम लोग जो पानी पीते हैं, तो पानी के ऊपर भी जैसा है, आप पानी पीने के पहले वो ग्लास को 1 मिनट दृष्टि देके, उसको देखते हुए, आपके भगवान को याद करते हुए, परमात्मा को याद करते हुए, पॉजिटिव वाइब्रेशन देने के बाद में अगर वो आप पानी ग्रहण करेंगे, तो उसका डेफिनेटली आपके ऊपर पॉजिटिव असर पड़ेगा। अपने शरीर में मोर देन 70% वाटर है, आपको पता है। तो फिर अगर इतना 70% अगर पानी है, तो जो हम लोग पानी ग्रहण कर रहे हैं, पी रहे हैं, वो टाइम पे अगर हम पॉजिटिविटी का पानी अंदर डालते हैं, तो इट विल रीच टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी से, हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, तो सब जगह वो पॉजिटिविटी पहुंच जाएगी, जिसके अंदर हमारे बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स तैयार हो जाएगा, तुम्हारा मेंटल कंडीशन अच्छा हो जाए, योर वाइब्स विल बी गुड, सो इट विल अफेक्ट ईच एंड एवरीथिंग। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि देयर विल बी टॉक बिटवीन एम्ब्रियो एंड एंडोमेट्रियम, हाँ, तो उसमें पॉजिटिव टॉक अगर है, तो वो एम्ब्रियो आपके पेट में रह जाएगा, प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो जाएगी। सो इट डिपेंड्स अपॉन ऑन द हार्मोन लेवल। अगर आप पॉजिटिविटी के साथ में खाना खाते हैं, पानी ग्रहण करते हैं, तो वो पॉजिटिविटी की वजह से सेरोटोनिन, पॉजिटिव हार्मोन्स बॉडी में सीक्रेट होंगे, जिसकी वजह से आपका प्रेगनेंसी का चांस डेफिनेटली बढ़ेगा। तो डाइट इम्पोर्टेंट है, और खाना पानी को वाइब्रेशन देके भगवान को याद करना है, परमात्मा को याद करते हुए खाना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा योगा, योगा मतलब जैसा हम लोग बोलेंगे प्राणायाम, जैसा प्राणायाम, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, और कपालभाति तो नहीं, लेकिन आप उज्जयी श्वास, ये जो रेस्पिरेटरी प्राणायाम के एक्सरसाइजेस अगर आप वो करेंगे, तो अपनी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। तो this definitely can be done for 15-20 minutes daily in the morning, early in the morning. तो प्राणायाम हम लोग डेफिनेटली एडवाइस करेंगे। थर्ड थिंग, मेडिटेशन। सी, मेडिटेशन जरूरी है, नॉट ओनली फॉर IVF, जनरल इज ऑल्सो, कोई भी प्रॉब्लम है कि नहीं है, लाइफ में मेडिटेशन, थोड़ा ध्यान करना जरूरी है। तो सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा एटलीस्ट आपको मेडिटेशन करना। जैसा अभी ये प्रोग्राम में आपको राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है, जिसमें आप परमात्मा को याद करते हुए, परमात्मा की किरणें मुझ पे गिर रही है और मेरे थ्रू मेरे बेबी पे गिर रही है, ऐसा आप संकल्प क्रिएट करके मेडिटेशन कर सकते हैं। तो मेडिटेशन सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा डेफिनेटली करना चाहिए। उसमें आपको आपको आपके माइंड को, मन को आपको एक दिशा देना है, जिस डायरेक्शन में फिर आपको वैसे टाइप की पॉजिटिव थॉट्स और आपको वैसे टाइप के विचार आपके मन में आएंगे। सो यू हैव टू गिव डायरेक्शन टू योर माइंड, ठीक है। तो आपको मेडिटेशन करना जरूरी है। तो ये जैसा अभी ये होलिस्टिक IVF प्रोग्राम में हम लोग पेशेंट को पूरा दिन की दिनचर्या दी जाती है। जैसे सुबह उठते ही पहले आप वो भगवान को, परमात्मा को थैंक्स बोलो, थैंक्स गिविंग के साथ में आपका दिन स्टार्ट होएगा। फिर आप सुविचार, एक पॉजिटिव गुड थॉट लोगे। फिर दिन में सुबह फिर मेडिटेशन करोगे, योगा करोगे, प्राणायाम करोगे। फिर आप डाइट के टाइम आपका ध्यान रखोगे, पानी पीते टाइम ध्यान रखोगे, पूरा दिन में 3 बार खाना खाते टाइम ध्यान रखोगे, पानी पीते टाइम ध्यान रखेंगे। शाम को आप वापस मेडिटेशन करोगे, और आपको अफर्मेशन दिया जाता है। अफर्मेशन मतलब कैसा, कि आप जैसे आप ऐसा इमेजिन करना कि जैसा भी आप IVF के ट्रीटमेंट से अंडरगो जा रहे हैं, तो जैसा अभी आपके समझो आपको इंजेक्शंस लग रहे हैं, एग्जाम्पल, तो आप तो वो टाइम पे ऐसा अफर्मेशंस अपने अंदर क्रिएट करना कि जैसे भगवान की, परमात्मा की किरणें मुझ आत्मा पे गिर रही है, और जिसकी वजह से मेरे शरीर में मेरे एग्स अच्छे नंबर से बन रहे हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो रही है। फिर जैसे बाद में एम्ब्रियो ट्रांसफर होएगा, वो टाइम पे आप ऐसे
थॉट देना कि बाबा एम्ब्रियो मेरे बॉडी के अंदर ठहर रहा है, प्रेगनेंसी हो रही है, मेरा बच्चा ग्रो हो रहा है, आई एम वेरी हैप्पी, माय फैमिली इज हैप्पी। जैसा व्हाटएवर यू वांट वैसा आप अफर्मेशन क्रिएट कर सकते हो। तो हम लोग पेशेंट के लिए रेडीमेड थोड़े अफर्मेशंस क्रिएट किए वाले हैं, कमेंट्री रेडी है जो पेशेंट हर पेशेंट को हम लोग देते हैं। तो उसमें ऑडियो भी है, वीडियो भी, विजुअल है और राइटिंग में भी कमेंट्री है, तो पेशेंट वो उनको फॉलो कर सकता है। फिर अफर्मेशन पूरा दिन में करना है, फिर शाम को एनालाइज करना है कि पूरा दिन में मेरी मेंटल कंडीशन कैसी थी, पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी, कैसी थी। फिर सोने के पहले परमात्मा को ग्रेटिट्यूड के साथ में थैंक यू, आज का दिन मेरा अच्छा गया, हर चीज के लिए थैंक यू। ऐसा थैंक्स गिविंग करने के बाद, ग्रेटिट्यूड के बाद में वो परमात्मा की याद में आपको सोना है। ऐसा पूरा दिन का आपका दिनचर्या आप फॉलो करते हो। अगर हर चीज में आप पॉजिटिव रहोगे तो आपका पॉजिटिव ही होना है, सक्सेस आपका हुआ ही पड़ा है। डॉक्टर जो करेगा बेस्ट पॉसिबल आपके लिए आपको करेगा, but still I think your mental condition is very very important. You have to think positive and good in each and every condition, whatever happens, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो तो कुछ भी रहने दो, मेरा अच्छा हुआ ही पड़ा है। ये पॉजिटिविटी अगर आपके अंदर है तो सब आपका अच्छा होना ही है। सो मेडिटेशन, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब कैसा होता है, ये इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स, ओबेस मोस्ट ऑफ, कभी कभी कैसे मोर देन 50% पेशेंट्स कैसे ओबेस पीसीओडी रहते हैं, तो वो लोगों को वेट रिडक्शन हम लोग एडवाइस करते हैं। अगर आपने मेरा पहले का लेक्चर जैसा टिप्स फॉर टू अवॉइड आईवीएफ फेलियर और टू क्रिएट गुड एम्ब्रियोज, अगर आप लेक्चर में यूट्यूब में आप देखते हो तो उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है पीसीओडी और ओबेसिटी के बारे में। सी बीएमआई हम लोग बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, बिकॉज ऑफ ओबेसिटी उनका बीएमआई ज्यादा हो जाता है। अगर वो 30-35 के ऊपर है तो नेचुरल प्रेगनेंसी ठहरने में उनको दिक्कत होती है, उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर वो लोग उनका 5% भी वेट रिड्यूस करते हैं, 5% वेट रिड्यूस करते हैं, तो मोस्ट ऑफ उनका 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो। यू टेक इट फ्रॉम 5% वेट अगर उनका कम होता है तो उनका काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो वेट रिडक्शन के ऊपर काफी ध्यान दिया जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम लोग देखते हैं पेशेंट आते हैं, हम उनको वेट रिडक्शन बोलते हैं तो काफी पेशेंट बोलते हैं कि हम लोग बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं, जिम किया, वो किया, न्यूट्रिशनिस्ट के पास गए, सब किया, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। सो जो लोग विलिंग है, अभी टाइम है, जिसके पास यंग पेशेंट है, तो उनको हम लोग 2 से 3 महीना उनके चॉइस के हिसाब से उनको जिम ज्वाइन करने को बोल सकते हैं या न्यूट्रिशनिस्ट का एडवाइस लेके कर सकते हैं। या फिर अगर वो लोग रेडी है तो जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग और व्हाटएवर डाइट का उनको जो कंफर्टेबल है वो फॉलो करके भी कर सकते हैं। बट स्टिल थंब रूल, जैसे आई हैव सीन कि जैसे पीसीओडी का पेशेंट, ओबेस पीसीओडी, अगर उनको इजीली ऐसा लाइफस्टाइल बोलना चाहिए कि जो वो इजीली फॉलो कर सके, जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, जैसे पेशेंट को 2 बार खाना खाना है, अगर हम लोग बोलते हैं तो 90% पेशेंट फॉलो कर सकते हैं। जैसे उनको बोलना है कि सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे 2 बार आपको खाना खाना है। ये खाने में आपको ज्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाना है और दही, कर्ड लेना है, चटनी, कर्ड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेना है। आपको चपाती, रोटी और राइस वो कम लेना है। सो कार्बोहाइड्रेट, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट कम लेना है और ज्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कर्ड्स, चटनी, सब्जी ले सकते हैं करके 2 बार का उनका खाना खाना, ये मोटा मोटे। बाकी रिमेनिंग टाइम में अगर उनको बीच में भूख लगती है शाम को वगैरह तो एक आधा फ्रूट वगैरह ले सकते हैं या फिर सुबह लेमन वाटर। तो ऐसा हम लोग लाइफस्टाइल उनका बोला गया तो हंसते खेलते उनका 5 केजी वेट तो आराम से कम हो सकता है। लेट नाइट आफ्टर 6 o'clock, मैक्सिमम 7 o'clock के बाद में अगर वो खाना अवॉइड करते हैं तो उनका 5 केजी वेट तो ऐसा आराम से कम हो जाएगा। और उसके अंदर अगर वो लोग बाहर का खाना नहीं खाए, स्पेशली बेकरी आइटम्स, ब्रेड, बिस्किट, केक, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक्स, बाहर का खाना, ऑयली फूड, घी, तेल, तला वाला खाना, स्वीट्स, ऑल टाइप्स ऑफ स्वीट्स, ये सब अवॉइड करते हैं तो 5 केजी वेट तो ऐसे ही आराम से कम हो जाएगा उनका। सो बेसिकली मोस्ट ऑफ दिस पेशेंट जो ओबेस रहते हैं वो स्वीट लविंग रहते हैं, उनको स्वीट 100% अवॉइड करना चाहिए। तो इतना करेंगे तो भी उनका वेट रिड्यूस हो जाएगा। सो दिस वेट रिडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रेगनेंसी। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी पेशेंट अगर ज्यादा ओबेस रहता है तो प्रेगनेंसी ठहर जाती है, लेकिन फिर अबॉर्शन का चांस भी ज्यादा हो जाता है। और बिकॉज ऑफ ओबेसिटी उसके एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस, उनको डायबिटीज आने का चांस रहता है, बीपी हाई हो सकता है। सो बिकॉज ऑफ ओबेसिटी दूसरे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो सकते हैं। तो थोड़ा वेट रिडक्शन किया वाला बेटर। तो एटलीस्ट अगर वो लोग इतना भी छोटा लाइफस्टाइल भी इतना फॉलो करके 2 बार मुझे खाना खाना है जिसके अंदर
ये चीज अवॉइड करना है। कौन सी चीज मैंने आपको बताया वो चीज अवॉइड करना है। ये चीज खा के उतना भी करे तो भी उनको 5 kg वेट तो आराम से रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये पूरा ये होलिस्टिक हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं ड्यूरिंग थ्रू आउट द जर्नी ऑफ IUI एंड IVF। डाइट, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज और ये अफर्मेशंस और होल डे के जैसे मैंने आपकी उनकी दिनचर्या वो उनको फॉलो करना है। सो इट हैज अ डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द आउटकम। जी, थैंक्स मैम। तो ये जो IVF है उस पे एज का भी इफेक्ट होता है जो अभी आपने बताया, तो एज मैटर करता है ना IVF के ट्रीटमेंट में? सबसे एक्चुअली एज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, इसको अंडरलाइन करना चाहिए। ये मेरे पूरा लेक्चर का अगर आपको सार लेना है, किसी को उसका बेनिफिट लेना है, तो आई जस्ट वांट टू अपील देम, मुझे बोलना है कि एज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज ऑफ द फीमेल पार्टनर सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई लड़की फीमेल चाइल्ड जब वो माँ के गर्भ में रहती है तो उसके अंदर ओवरी में हम लोग एक फॉलिकल्स बोलते हैं, तो उसका नंबर 6 to 8 मिलियंस, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, मतलब 60 to 80 लैक्स एग्स ओवरी के अंदर रहते हैं कि जब वो लड़की माँ के पेट में रहती है खुद, वो जब फीमेल चाइल्ड पैदा होता है तभी वो 6 to 8 मिलियन से 1 मिलियन हो जाता है, मतलब 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन ओनली एट द टाइम ऑफ बर्थ। और वो लड़की जब मैच्योर होती है, जब पहली बार उसको मेंसेस आता है 13 to 14 इयर्स ऑफ एज जब होता है, तभी ये 1 मिलियन मतलब 10 लाख का 1 लाख हो जाता है। तो एग्स इतने फास्ट डिग्रेड होते हैं, सो इट बिकम्स 1 लाख एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, और अब वो फीमेल चाइल्ड पूरा अपने लाइफ टाइम में टिल सी गेट्स मेनोपॉज 400 to 500 एग्स खाली ओव्यूलेट करती है। अब मतलब हमारे पास 1 लाख एग्स है जब वो मैच्योर हुई तभी, तो लाइफ टाइम में वो 400 to 500 एग्स ओव्यूलेट करती है, बाकी के सब एग्स डिग्रेड हो जाते। तो एज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लेक्चर जो भी सुन रहे हैं मुझे सबको बताना है कि कोई भी लड़की का इफ पॉसिबल 30 एज तक उनको एटलीस्ट एक बच्चा होना चाहिए, अप टू द एज ऑफ 30, क्योंकि एग्स का नंबर कम होता जाता है। बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग ऑलवेज। तो एज होता जाता है ना, वैसा ओवरी एजिंग स्टार्ट होता है, तो नंबर ऑफ एग्स कम होते जाते हैं। 25 इज द पीक ऑफ द फर्टिलिटी इन फीमेल लाइफ। 30 एज में 30 एज तक ओके, आफ्टर 30 ये कर्व डिक्लाइन डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है। जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी स्लाइड आई हैव एक्सप्लेन, यू कैन गो बैक एंड सी दैट लेक्चर। स्लाइड के साथ में मैंने एक्सप्लेन किया 30 साल के बाद में ये जो एग का पहले जो बढ़ गया है वो बाद में एकदम डिक्लाइन होना चालू हो जाता है, और आफ्टर 35 वो तो एकदम ड्रास्टिकली डिक्लाइन होता है। तो 30 के एज के अंदर अगर अपन एक बच्चा हो जाता है तो दैट इज वेरी वेरी गुड। नहीं हुआ है तो एटलीस्ट 35 के अंदर तो आपको एक बच्चा कर लेना चाहिए, क्योंकि 35 के बाद में सेल्फ एग्स एकदम कम हो जाते हैं। और मेनोपॉज जब आता है उसके 13 साल पहले 13 इयर्स बिफोर मेनोपॉज उनके एग्स खत्म हो जाते हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, नॉट ओनली टू गेट द एग्स बट फॉर द सक्सेस ऑफ IVF। क्योंकि अगर वो यंग एज है, उसका ज्यादा एग्स है, तो ज्यादा नंबर ऑफ बेबी बनेगा उनको जो IVF के बाद में, तो प्रेगनेंसी का चांस वैसे ही बढ़ जाएगा। अगर उनकी एज ज्यादा है, कम नंबर ऑफ एग मिलते हैं, तो उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं रहती है, फर्टिलाइजेशन का चांस भी कम रहता है, एनोमली होने का, उसमें अबनॉर्मल एम्ब्रियो होने का चांस भी ज्यादा रहता है। सो एज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द सक्सेस ऑफ फर्टिलिटी। सो और एजिंग के साथ में क्वालिटी भी एग की कम होती है, उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी कम होती है। सो क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ डिक्रीजेस एज एज इंक्रीजेस। एज जैसे बढ़ती जाती है क्वालिटी भी कम होती है, क्वांटिटी भी कम हो जाती है। सेम थिंग हैपेंस फॉर द मेल आल्सो। सीमेन पैरामीटर्स, सीमेन में भी जैसे उनका एज अगर ज्यादा है तो उनका क्वालिटी सीमेन क्वालिटी पुअर हो जाता है, उनकी मॉर्फोलॉजी स्पर्म मॉर्फोलॉजी भी इफेक्ट पड़ती है, उनका हेड टेल अबनॉर्मल स्पर्म्स मोर हो जाते हैं। तो definitely age is the most important for is all this statement. The time thing to be underlined is the age. जी मैम।
तो मेल पार्टनर की भी एज अफेक्ट कर सकती है फर्टिलिटी में? डेफिनेटली मेल की एज फर्क पर, जैसे मैंने आपको बोला था कि सीमेन पैरामीटर्स क्वालिटी उसका कम हो जाता है। सी पुराने जब व्हेन वी वर स्टडिंग हम लोग WHO क्राइटेरिया, हमारा सीमेन का पैरामीटर्स का नॉर्मल स्पर्म काउंट हम लोग 60 to 120 मिलियंस पर ml बोलते थे। अभी आजकल WHO क्राइटेरिया अभी 10 मिलियन 20 मिलियंस क्राइटेरिया हो गए। मतलब स्पर्म की क्वालिटी इतनी डिग्रेड हो गई है, इतनी कम हो गई है। अभी हम हमारी प्रैक्टिस में पेशेंट देखते हैं ऑलमोस्ट 30 to 40% मेल पार्टनर प्रॉब्लम रहता है। तो स्पर्म क्वालिटी इतनी कम होने का देयर आर सो मेनी रीजंस। मेन रीजन इज अल्कोहल एंड टोबैको। गांव में अभी भी ज्यादा मेल लोगों को अल्कोहल और ये टोबैको चूइंग, जैसे गुटखा या सिगरेट स्मोकिंग, ये सब कॉमन है। तो उसकी वजह से डेफिनेटली स्पर्म का काउंट कम हो जाता है। फिर दूसरी चीज, आजकल की लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, नींद नहीं होती है, लाइफस्टाइल इरेटिक है। फिर स्ट्रेस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, टॉक्सिन्स, पेस्टिसाइड, खाने में सभी पेस्टिसाइड्स वगैरह रहते हैं। टोटल ये सभी का इफेक्ट टुगेदर लेके ओवरऑल स्पर्म क्वालिटी इज डेफिनेटली डिग्रेडिंग डे बाय डे, कम होती जा रही है। जी मैम, तो कौन से एज तक हमने IVF करना चाहिए? सी कौन से एज तक? सी इन इंडिया में अप टू 50 इयर्स इट इज अलाउड फॉर फीमेल्स एंड मेल अप टू 55। मतलब अगर कोई लेडी मेनोपॉजल है, उसको मेनोपॉज हो गया वो, लेकिन तो भी उसको बच्चा चाहती है वो, अगर लेकिन उसकी एज अगर 50 के अंदर है, तो शी कैन टेक डोनर एग प्रोग्राम के साथ में वो बच्चा कंसीव कर सकती है। इंडिया में वो लीगल है, तो उसके साथ में वो हो सकता है। आजकल काफी सारे हम लोग यंग लड़कियां भी देखती है जिनका AMH ऑलरेडी लो है, वो 25 साल के है, लेकिन तो भी उनका AMH काफी कम है, ऑलरेडी उनके एग खत्म हो चुके हैं। वी कॉल इट प्रीमैच्योर ओवेरियन फेल्यूर। तो वो लोगों को भी डोनर एग लेके वो लोग IVF में जा सकते हैं। और ये डोनर एग इट इज एब्सोल्युटली सेफ। जैसा ब्लड डोनेशन, पहले ब्लड बैंक में से ब्लड लेते थे, वो पूरा टेस्टेड ब्लड रहता था, ऐसा ही एम्ब्रियो बैंक रहते हैं, उसमें से वो डोनर रिक्रूट किया जाता है। तो इट इज प्रोफेशनली इट इज डन एंड इट हैज बीन टेस्टेड फॉर एवरीथिंग, फॉर ऑल द टेस्ट लाइक HIV, HBsAg, HCV, सब टेस्टेड होते हैं। सो उसमें कोई बात नहीं। सो दे कैन यूजिंग डोनर प्रोग्राम वो कर सकते हैं। लेकिन अगर इसलिए वो डोनर प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़े, इसलिए आप जितना जल्दी हो सकते हैं सेल्फ एक्स के साथ में प्रेगनेंसी करने का ट्राई करना चाहिए। डोंट डिले इट इज टू मच कि जब तक कि बाद में अपने को डोनर एग लेके करना पड़े। सो दैट इज द रेड अलर्ट। जितना जल्दी हो सकते हैं उतना अपना बच्चा उनको कर लेना चाहिए। बाकी रिमेनिंग थिंग्स लाइफ में चलती रहती है, जैसा करियर हुआ, फैमिली का सेटलमेंट हुआ, वो साइमल्टेनियस चलता रहता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, लड़कियां सोचती है कि मेरे को अभी पहले सेटल होने दो लाइफ में, मेरे को घर बन जाने दो, जॉब मिल जाने दो, देन आई विल थिंक ऑफ बेबी। लेकिन ये सब प्रोग्राम ये कभी भी ये होने के बाद वो होता हूँ ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इट शुड हैपन साइमल्टेनियसली। सी लाइफ में जैसा तुम्हारा करियर भी चल रहा है साथ में, ठीक है, पढ़ाई टाइम आई अंडरस्टैंड कि देयर विल बी डिस्टर्बेंस फॉर द एजुकेशन, बट वंस दे गेट मैरिड, after marriage they should not delay much for the pregnancy. Job, working, that will be going on lifelong, but they just should not postpone pregnancy just for thinking कि अभी settle नहीं हुआ है, I am not mentally ready, अभी financial condition मेरी अच्छी नहीं है। वो समझ के जिस small things के लिए उनको pregnancy definitely postpone नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको बाद में उसकी वजह से regret करना पड़ता है। एक बार time चला गया तो बाद में फिर they will think no, I should have done it before, and but once that aging happens then nothing can be done. सो उसके हिसाब से ध्यान देके उनको पहले से ही केयर करना। आई थिंक प्रिवेंशन इज बेटर, तो पहले से ही आपको ध्यान देना चाहिए। जी मैम। मैम, तो IVF की कितनी साइकिल्स करनी चाहिए और कितने नंबर्स ऑफ IVF साइकिल के बाद हमने फिर उसका ट्राई नहीं करना चाहिए? सी इट डिपेंड्स कितना IVF साइकिल करना चाहिए, ऐसा हम लोग नंबर नहीं बोल सकते। हमने देखा है कोई पेशेंट 8 साइकिल 9 साइकिल भी IVF करते हैं प्रेगनेंसी होने के लिए। इट डिपेंड्स अपॉन तुम्हारा कैपेसिटी कितना है, नॉट ओनली फिजिकल मेंटल कैपेसिटी, फाइनेंशियल कैपेसिटी कितना है। लेकिन अगर
कोई कोई लोगों को रहता है कुछ भी हो जाए मुझे बच्चा चाहिए, वट एवर हैपन्स इन एनी कंडीशन आई वांट बेबी। तो फिर वो लोग मेंटली प्रिपेयर रहते तो वो लोग कितना भी साइकिल्स कर सकते, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एज सच कि इतना ही साइकिल करना चाहिए। जब तक उनको बेबी नहीं मिलती तब तक वो लोग कर सकते हैं, उसकी वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ता। दे कैन अंडरगो एज मेनी नंबर ऑफ साइकिल्स दे रिक्वायर, दे शुड बी रेडी फॉर दैट। और वही बोलो, इट डिपेंड्स अल्टीमेटली ऑन द पेशेंट कि मुझे बच्चा होना ही है, ऐसा है तो फिर वो लोग कराते हैं। तो जैसे अभी आपने मैम बताया कि एज के मैटर के वजह से भी हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं या मना डोनर ले सकते हैं, वैसे कब हमने एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसेस करनी चाहिए? कब मतलब, जैसे आई टोल्ड यू नो, एम्ब्रियो ट्रांसफर में फ्रेश ट्रांसफर रहता है और फ्रोजन ट्रांसफर रहता है। जैसे फ्रोजन ट्रांसफर मतलब एक साइकिल में उसको स्टिमुलेट करके वो एग्स एम्ब्रियो बना के फ्रीज करके रख देते हैं, बाद में वो भी डे 3 का भी हो सकता है, डे 5 का भी हो सकता है, जिसको ब्लास्टो बोलते हैं। और बाद में हम इसको सेगमेंटल आईवीएफ बोलते हैं। और नेक्स्ट साइकिल में उनको हार्मोन टेबलेट देके एंडोमेट्रियम यूट्रस का लाइनिंग बनाया जाता है और बाद में इसको डालते हैं, उसको फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर बोलते हैं। और दूसरा फ्रेश ट्रांसफर, वो सेम साइकिल में जो स्टिमुलेटेड साइकिल है वो साइकिल में तीसरे दिन या 5वें दिन बच्चा डालते हैं, वो दोनों भी कर सकते हैं। सो डिपेंड्स, आपका कंसल्टेंट फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डिसाइड करेगा कि आपको क्या करना चाहिए, तो वो डिसाइड करेगा। उसमें आपको आई थिंक यू शुड नॉट थिंक मच, लीव दैट डिसीजन टू द फर्टिलिटी कंसल्टेंट। आजकल मैंने देखा है कि काफी पेशेंट जैसा गूगल के ऊपर पढ़ के वगैरह पहले से ही थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेके आ जाते हैं, तो दे विल बी आस्किंग क्वेश्चंस फॉर ईच एंड एवरी स्टेप कि ये क्यों, वो क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो आई थिंक क्या होता है, हाफ नॉलेज रहता है, उसकी वजह से इट विल बी लाइक डिस्टर्ब। आपको पूरा उसके बारे में नॉलेज नहीं है, एक और वीडियो, एक दो वीडियो देखने से आपको क्या पूरा नॉलेज उसमें नहीं मिल जाएगा। 10-10, 15-15 साल पढ़ने के बाद में आफ्टर डूइंग सो मच ऑफ रिसर्च वी हैव कम टू दिस कंक्लूजन। एक दो वीडियो से आपको कुछ उसमें खास नॉलेज नहीं मिला, इट इज जस्ट हाफ इंफॉर्मेशन। तो उसकी वजह से आप डॉक्टर को आप ऐसा करो वैसा करो, तो कभी कभी क्या होता है, डिसीजन रॉन्ग हो जाता है। सो इट इज बेटर कि यू लीव दैट डिसीजन टू द कंसर्न डॉक्टर और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, यू डू दैट। आई वांट रिजल्ट, मुझे बच्चा चाहिए, तो व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, यू डू दैट। सो यू लीव इट टू हिम, एवरीथिंग विल बी गुड। मैम अगर एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद कभी कभी स्पॉटिंग होता है, तो क्या ये चिंताजनक है? मना इसमें कोई चिंता की बात है? जैसे मैंने आपको बोला ना, एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद में कभी कभी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकता है, थोड़ा स्पॉटिंग हो सकता है, या प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद में, पॉजिटिव आने के बाद में भी उनको स्टार्टिंग में ब्लीडिंग हो सकता है। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं, बट यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर इमीडिएटली, क्योंकि अबॉर्शन चांसेस हाई रहता है, तो उसमें वेट नहीं करना चाहिए। आपके डॉक्टर को कंसल्ट करके स्टार्ट ट्रीटमेंट। अगर वो एडमिट होने को बोलते हैं तो आपको एडमिट भी होना पड़ सकता है 2-4 बार, पहले 3 महीने में 3-4 बार एडमिशन भी लग सकते हैं। तो इफ यू टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट, नथिंग टू वरी। ओके मैम। तो जो स्टिमुलेशन साइकिल होता है, अभी आईयूआई की अगर बात करें, हम्म तो अ, उसमें कौन सी प्रोसीजर में कौन सा केयर करना चाहिए? आईयूआई की अगर बात करें हम। सी आईयूआई मतलब इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूटेराइन, यूट्रस के अंदर इंसेमिनेशन, सीमेन अंदर डाला जाता है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो इस पहले प्रोसीजर क्या रहती है, आईयूआई में क्या करते हैं, फीमेल पार्टनर को जैसा सेकंड डे या थर्ड डे आता है पेशेंट आफ्टर मेंसेस, तो वो टाइम पे पहले स्कैनिंग किया जाता है, उनकी ओवरी देखी जाती है कि दोनों ओवरी कूल है क्या, मतलब उसमें कुछ सिस्ट नहीं है ना। पहले लास्ट साइकिल के कुछ बच्चे हुए सिस्ट वगैरह नहीं तो कंफर्म किए जाते हैं, उसके बाद में उसको स्टिमुलेट किया जाता है। स्टिमुलेशन करने के लिए टैबलेट दी जाती है, टैबलेट दी जाती है, और मतलब डिपेंड अपॉन उसका बीएमआई, उसका एज, उसका एएमएच लेवल, उसके हिसाब से डोज उसका एडजस्ट किया जाता है। फिर पेशेंट को जैसा थर्ड डे आया, फिर 7th 8th डे बुलाया जाता है, या अल्टरनेट डे बुलाया जाता है, कि बार बार फॉलिकुलर स्टडी हम लोग बोलते हैं, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, जिसके अंदर हम लोग उनके एग कैसे बन रहे हैं, कितने नंबर बन रहे हैं, क्या साइज हो रहा है, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। अगर ओबेस पेशेंट है तो उनको हमको हार्मोन्स की इंजेक्शन भी देना पड़ सकता है, एचएमजी वगैरह एफएसएच इंजेक्शन भी देना पड़ सकता है, जिसकी वजह से उनको एग बने। टारगेट क्या रहता है कि 2 to 3 फॉलिकल्स हमारा आईयूआई में, वी कॉल इट कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन। 2 to 3 फॉलिकल्स हमारा ओवरी में बन जाए, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी चांस अच्छा हो जाए। जब उनका
फॉलिकल्स जैसे हम लोग 18 to 20 मिलीमीटर बोलते हैं, जब उतना बन जाता है तब उनको हम लोग रप्चर होने के लिए इंजेक्शन देते हैं। तो इंजेक्शन के बाद में पेशेंट को 40 आवर्स के बाद 36 to 40 आवर्स के बाद में हम लोग IUI को बुलाते हैं, जिसके अंदर हस्बैंड सैंपल देता है, सीमेन देता है, उसको प्रोसेसिंग किया जाता है, उसको हम वॉश, हम लोग बोलते हैं वॉश करके प्रोसेसिंग करके, जिसमें मीडिया में अंदर सीमेन रहेगा, जिसकी वजह से स्पर्म्स की मोटिलिटी बढ़ेगी और उसको जो स्पर्म्स को जो भी चाहिए विटामिन वगैरह सब मिलके इट विल बी हैविंग, इट बिकम्स वेरी मोटाइल एंड गुड क्वालिटी स्पर्म, and then we inject that semen through the small catheter in the uterus. OPD प्रोसीजर है ये। आफ्टर IUI पेशेंट एक 10-15 मिनट उधर सोया रहेगा, देन पेशेंट कैन गो वॉक अवे, उसमें कुछ रेस्ट की जरूरत नहीं। पोस्ट IUI उनको कुछ खास केयर करने की जरूरत नहीं। IUI का टाइम जो रहता है वो हम लोग बोलते हैं कि 4 to 5 days, लाइक दे हैव टू डू दैट इंटरकोर्स हस्बैंड वाइफ, दैट 4 to 5 days ड्यूरिंग दैट टाइम। बाकी और एक्स्ट्रा कुछ केयर लेने की जरूरत नहीं IUI में। मैम, वैसे IVF की प्रोसीजर और उसमें कौन सी केयर पर्टिकुलर, वैसे केयर की बात तो आपने बहुत बताई मैम, जैसे डाइट की बताई और बहुत सारी, तो वैसे IVF की साइकिल प्रोसीजर क्या होती है और उसमें रिस्क कौन से होते हैं, केयर भी कैसे करें? आपको मैं IVF की प्रोसीजर बताती हूँ। IVF मतलब क्या, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन बाहर कर रहे हैं। तो क्या होता है, जिन लोगों की ट्यूब ऑलरेडी ब्लॉक है, सी बेबी कैसे बनता है, फीमेल का एग और हस्बैंड का स्पर्म का फर्टिलाइज होकर बच्चा बनेगा। तो हम लोग फीमेल को स्टिमुलेशन करते हैं, मतलब उनको इंजेक्शन दिया जाता है, जिसकी वजह से उनके ओवरी में दोनों साइड में हम लोग मल्टीपल एग्स बनाते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 10 डेज, एवरेज 10 to 11 डेज उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं। उसके बाद में उसको पिकअप को बुलाया जाता है। तो फिर बाद में एग अंडर एनेस्थेसिया वो एग रिट्रीव की निकाले जाते हैं, और निकालने के बाद में डिश में, पेट्री डिश में वो एग के साथ में हस्बैंड के सीमेन के साथ में उनको फर्टिलाइज किया जाता है, और फर्टिलाइज करके बेबी बनाए जाते हैं। तो वो बच्चे बाद में इंक्यूबेटर में रख के उनको ग्रो किया जाता है। तो कितने एग्स, कितने नंबर, क्वालिटी, वेदर फर्टिलाइजेशन हुआ है कि नहीं, उनके नंबर कितना है, वेदर दे आर ग्रोइंग प्रॉपरली और नॉट, सब उसके ऊपर डिपेंड रहता है। बाद में समझो आपको जब पिकअप किया तभी 10 एग्स थे, फिर उसमें 7 M2 एग रहेंगे, थोड़े GB रहेंगे, थोड़े प्रीमैच्योर रहेंगे, तो फिर वो लोग यूज नहीं होंगे। तो जो 6-7 अच्छे थे उसमें कितने फर्टिलाइज हुए, समझो 5 फर्टिलाइज हुए, वो 5 फर्टिलाइज होने के बाद में उसमें आगे कितने बढ़े हैं, थोड़े बीच में अरेस्ट हो जाते हैं, कितने आगे बढ़े, डे 3 को आपके कितने एम्ब्रियो बचे हैं। सो फिर अगर कितना बेस बस फिर डे 3 अगर ज्यादा एम्ब्रियो है तो उनको डे 5 तक भी कल्चर किया जाता है। सो डिपेंड्स कि कितने एग निकलते हैं, कितने बचते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग वेट करते हैं। और बाद में अगर आजकल क्या हो जाता है, आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग क्या करते हैं, एम्ब्रियो बना के उनको फ्रीज कर देते हैं, और नेक्स्ट साइकिल में एंडोमेट्रियम अच्छा बना के देन वी कॉल इट HRT साइकिल, हार्मोन साइकिल, उसके अंदर ये एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है, सो दैट प्रेगनेंसी चांस अच्छा हो जाता है। जी मैम, तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन थे उन सभी के आंसर्स हमें मिले हैं, और अभी पार्टिसिपेंट्स में से कोई अगर क्वेश्चन पूछना चाहे तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखिए। तो लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, AMH समथिंग कुछ एक चैट बॉक्स में हाँ, ये आया है, AMH लेवल कम है तो नॉर्मली प्रेगनेंसी होती है क्या, ऐसे क्वेश्चन आए। कम मतलब कितना है एग्जैक्टली अगर दैट वो अगर बता सकते हैं अनम्यूट करके कितना लेवल है। हम अनम्यूट का ऑप्शन दिए हैं, आप बात कर सकते हैं। 0.1 हेलो कितना है? वो 0.1 है। 0.1 see 0.1 is very low AMH. What is the age? 27 27 नॉर्मली हुआ था, 27 ऑपरेशन हो गया। क्या हो गया? ऑपरेशन हो गया है 2 बार। क्या हो गया 2 बार? ऑपरेशन हो गया है, ऑपरेशन। ऑपरेशन 2 बार। AMH is 0.1. AMH is 0.1
और एज 27 है, आपका एज छोटा है, यंग एज है, 0.1 IUI साइकिल्स हुए दो क्या? बार दो बार हुए हैं। तो IUI साइकिल में फॉलिकल कैसे बने थे, कितने बने थे? 2-3। बने थे। हाँ। हाँ तो फिर ठीक है, अभी आपके बाप का एज थोड़ा, आप 1-2-3 साइकिल करने में हर्ज नहीं, 2 to 3 IUI साइकिल्स वो ट्राई कर सकते हो। अगर उसके अंदर आपका हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो देन यू शुड गो फॉर IVF। लेकिन 2 से 3 साइकिल आप ट्राई कर सकते हो, उसमें कुछ हर्ज नहीं, क्योंकि IUI इज सिंपल प्रोसीजर, ओपीडी प्रोसीजर, उसमें आपका कॉस्ट भी कम हो जाता है और इट इज सिंपल प्रोसीजर। तो आपको पहले एनीवे इतना भी 0.1 है ऑलरेडी, आपको अभी ये टाइम पे आप सोच के रहे तो 2 to 3 मंथ्स में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला ज्यादा कुछ। तो 3 to 4 साइकिल्स आप IUI करके देन यू शुड थिंक फॉर फर्दर ट्रीटमेंट, ट्राई कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं। बाद में अगर नहीं हुआ तो फिर IVF करना। नॉर्मली नहीं हो सकता है लेकिन नहीं, बिल्कुल नॉर्मल ट्राई करना ही नहीं, 0.1 में बिल्कुल सोचना भी नहीं है। Either IUI और IVF। IUI में भी ओनली 3 to 4 साइकिल्स, उसमें नहीं हुआ तो स्ट्रेट वे गो फॉर IVF, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अभी आपका ऑलरेडी 0.1 AMH कम है, अगर आप उसमें और थोड़ा टाइम एक साल कर देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, 0.01 वगैरह हो जाएगा। तो बाद में तो कुछ कर नहीं सकते, फिर बाद में आपको डोनर एक लेके प्रोग्राम करके आपको IVF करना पड़ेगा। तो इसलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपके लिए टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 to 4 साइकिल्स IUI करके स्टेट पे गो फॉर IVF। ओके, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है मैम से? अगर आप अनम्यूट करके बात नहीं कर सकते तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैम मे बी देयर इज नो क्वेश्चन, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन लिए और उसके बहुत डिटेल्स आंसर्स भी आपने दिए। अगर आप और कुछ गाइडेंस करना चाहते तो प्लीज कीजिए। खाली अगर ये लेक्चर से आपको कुछ लेना है तो मुझे इतना ही, आई जस्ट वांट टू टेल ऑल द पेशेंट्स व्यूअर्स जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट एज है, फीमेल की एज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। नॉर्मली जो निग्लेक्टेड एरिया है, क्योंकि ओवेरियन एजिंग जल्दी स्टार्ट हो जाता है, और 35 एज के बाद में उनका एग स्पेशली नंबर्स एकदम ड्रास्टिकली कम हो जाता है। तो एज बहुत ही इम्पोर्टेंट है सक्सेस के लिए, नॉट ओनली नेचुरल प्रेगनेंसी, आल्सो इन IUI एंड IVF। एज एक नंबर है। अगर एग्जांपल IUI का सक्सेस रेट हम लोग 10 to 15% पर साइकिल बोलते हैं, जैसे IUI का 10 to 15%, मतलब अगर 100 लोगों को हम लोग IUI करते हैं तो एक साइकिल में 10 या 15 लोग प्रेगनेंसी होएगा। तो हम लोग 5 to 6 साइकिल्स IUI करने का एडवाइस करते हैं, तो वी टेक इट क्यूमुलेटिव सक्सेस रेट, तो 50 to 60% क्यूमुलेटिव सक्सेस रेट होता है। तो एज एक फैक्टर है जिसकी वजह से आपका प्रेगनेंसी, अगर आपकी एज छोटी है, एज कम है, तो आपको जल्दी प्रेगनेंसी हो जाएगी। वही अगर आपकी एज ज्यादा है तो सेम प्रॉब्लम बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। छोटा चीज बड़ा होके एक के साथ में एक दूसरा कॉम्प्लिकेशन होके इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। वही अगर कॉम्प्लिकेशन अगर है भी, अगर यंग एज में है तो आपको ठीक हो जाएगा, जैसे कि BP हुआ, शुगर हुआ। एज कम है तो अगर आपको वो टाइम पे BP मोस्टली नहीं आएगा, अगर ओबेसिटी है तो डायबिटीज आएगा, स्टिल इट कैन बी टैकल्ड। लेकिन अगर आपका एज ज्यादा है 40-42, वो टाइम पे आपको BP आने का चांस भी ज्यादा, शुगर आने का चांस भी ज्यादा और एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस भी ज्यादा है। सो एज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द सक्सेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड द आउटकम ऑफ द प्रेगनेंसी, टेक होम बेबी के लिए एज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। नहीं मुझे 9 IVF है मेरे, 40, क्या क्वेश्चन है? जस्ट रीड। जी, लिखा है 9 IVF फेल हुए हैं उनके और एज 40 है। नेक्स्ट IVF में मेरे फेल ना हो इसलिए मुझे क्या ध्यान रखना चाहिए? आपको 9 IVF ऑलरेडी आप करके फेल हो गए, तो मुझे लगता है आप ये जो 9 डोनर एग, आपके AMH लेवल क्या है सब उसके ऊपर डिपेंड है। अगर आपका AMH लेवल अगर कम है
तो आपको डोनर एग प्रोग्राम के साथ में IVF के लिए आप जा सकते हो। 9 IVF फेल हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। यू कैन डेफिनेटली हैव डेफिनेटली गेट प्रेगनेंसी, उसमें कुछ डाउट नहीं है, क्योंकि आजकल एंडोमेट्रियम अगर आपका अच्छा बन रहा है, गुड एम्ब्रियो क्वालिटी है, तो आपको डेफिनेटली डोनर एग के साथ एम्ब्रियो बना के यू कैन गो अहेड, बिना दिल छोटा किए हुए यू विल हैव डेफिनेटली सक्सेस, उसमें कुछ नहीं है। अगर आपका एंडोमेट्रियम एटलीस्ट मोर देन 7 mm बनना चाहिए, 7 mm हम लोग कट ऑफ बोलते हैं, उससे अगर ज्यादा हो रहा है तो आपको कर सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने ही बोला है कि अनएक्सप्लेन फर्टिलिटी जो होती है उसमें सक्सेस चांस कितना होता है? वही आपको बोलूं, कौन सा भी अभी अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, सब आपका डिपेंड, सक्सेस आपका एज, आपका AMH और हस्बैंड फैक्टर, ये 3 के ऊपर डिपेंड है। अगर आपका एज कम है, समझो आपका एज 25 ईयर, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, शादियों के 5 बरस हुआ है वगैरह, तो फिर आप आपके पास टाइम है, 1 साल आप वेट कर सकते हो, नेचुरल टाइम इंटरकोर्स कर सकते हो, ओव्यूलेशन इंडक्शन देके टाइम इंटरकोर्स कर सकते हो। उसमें भी नहीं हुआ तो 1-2-3 महीना गैप देके भी, बहुत बार क्या होता है, हमने काफी टाइम्स देखा कि पेशेंट को IUI हम लोग 3-4 साइकिल करते हैं, प्रेगनेंसी नहीं होती है। फिर हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गए, थोड़ा रेस्ट ले लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, 1-2-3 महीना आप कुछ मत कराओ, रिलैक्स हो जाओ, कहाँ घूम के आ जाओ। तो काफी पेशेंट तो उसमें स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन भी हो जाता है। तो ये अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का डिपेंड्स अपॉन द एज। अगेन मैं आपको, जैसे मैंने आपको पहले भी इंसिस्ट किया कि एज इज इंपॉर्टेंट। अगर उसकी छोटी एज है, 25-30 एज है, तो फिर वो लोग बीच में ब्रेक दे सकते हैं, IUI ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एज 35 और उसके ऊपर है, तो इवन इफ इट्स अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, आपको IVF के लिए जाना चाहिए। अगर 35 के ऊपर आपको एज है तो यू शुड थिंक फॉर IVF। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको बाद में कुछ भी क्वेश्चन आते हैं तो आप ग्रुप में यू कैन आस्क मी, आई विल डेफिनेटली आंसर, उसमें कुछ जी, प्रॉब्लम। अगर आप में से कोई ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो मैं एक नंबर भेज देती हूँ, तो आप इस पे मैसेज कीजिएगा, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो आप बाद में भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वी विल गिव यू जेन्युइन एडवाइस एंड जेन्युइन ट्रीटमेंट, नथिंग टू वरी। जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में IVF का या IUI का ट्रीटमेंट कराएंगे तो डेफिनेटली सक्सेस हुआ ही पड़ा है। यू हैव टू बी पॉजिटिव, हुआ ही, मेरा होना ही है। यू हैव टू थिंक एट ईच एंड एवरी स्टेप, जितने भी प्रॉब्लम्स आए, कॉम्प्लिकेशन आए, कुछ भी है, मुझे चाहिए बच्चा, बस ओनली वन थिंग यू हैव टू थिंक, एंड जस्ट सरेंडर एवरीथिंग टू गॉड। यू डू योर लेवल बेस्ट, फॉलो द लाइफस्टाइल ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा होल डे की लाइफस्टाइल आपको क्या फॉलो करना है, वो फॉलो करो, एंड डॉक्टर जैसा बोलते हैं ऐसे फॉलो करो, आपको होना ही है सक्सेस, उसमें कुछ थॉट नहीं है। थैंक यू सो मच मैम फॉर वंडरफुल गाइडेंस, और इतने बिजी शेड्यूल में भी आप हमारे लिए इतना समय लेकर आए, थैंक हर यू सो क्वेश्चन मच, का माय आंसर प्लेजर। दिया। जी, थैंक थैंक यू यू सो मच मैम, थैंक यू। पार्टिसिपेंट्स का भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आप जब भी क्वेश्चन पूछना चाहे, ग्रुप हमारा इवनिंग में 3 to 6 ओपन रहता है, तो आप मैम के लिए क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैम जरूर आंसर भी देंगे। Yeah, थैंक I will definitely answer, कुछ भी प्रॉब्लम है you can definitely ask me, ठीक है? यू। जी, थैंक्स मैम। God bless you all, सबका अच्छा हो। Thank you. जी, थैंक यू सो मच मैम। तो अभी 1 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद सेशन एंड करेंगे। शांति, गुड नाइट। Thank you. Stimulating egg growth and womb preparation, medications and injection and meditation. I am a powerful being, child of the Supreme Father God, who is taking treatment through a team of powerful divine souls for bringing a divine soul in my body. This treatment is going to be successful, as God Himself is doing this through His children for me. I completely love and trust my body
My cycle is finding a perfect regular balance. I am energetic, alert, and filled with divine energy. I am healing and becoming pure physically, emotionally, and spiritually. I can experience changes in my body, a sign of the medications and meditation preparing my body for a miracle. Every day I am becoming healthier, happier, and more fertile. My partner and I are dealing with this with calmness and strength. Thank you, God, for all your care, support, love, and affection. My ovaries are healthy and fully nourished. My ovaries are a reserve of very strong eggs prepared for fertilization. My follicles are surrounded by the bright, divine light of growth and mature easily. God is empowering these eggs. My ovaries and my womb are surrounded with warm and loving energy. My uterus is preparing perfectly for the fertilized egg to implant with medication and meditation with Supreme God. Every cell of my body is in total balance and harmony. Egg growth monitoring with ultrasound. Oxygen, energy, and blood easily circulate through my body and nourish my ovaries, my follicles, and my womb. My body is selecting the healthiest and strongest follicle to become a perfect egg. My body grows the best egg this cycle. My egg is empowered by divine energy of God, the Supreme. Inducing ovulation. With ovulation inducing injection, ovulation is happening in expected time. Sperm processing. Intrauterine insemination process. Wife. My husband is God's child and cooperating with me in purity. He is getting powerful vibes from Supreme God to have perfect sperms for this divine process. Husband, I am strong and healthy. I am a pure and powerful soul. My body is capable of producing good quality fertile sperms. I have powerful sperms. I am an active participant in our journey towards becoming parents. I am confident I will become a father. God, my Father, is with me. Intrauterine insemination process is successfully completed. Egg fertilization. After the insemination, the fusion of the ovum and sperm is happening in a perfect way with God's grace, and a wonderful embryo is created. This embryo is healthy and divine. My body welcomes this embryo, the divine energy, with love and joy. My embryo, the divine energy, easily implants in my womb. My womb is receptive to a new life. My womb is healthy and will bring a divine baby into being. Today I am going to be a mediator to gift this divine creation to my family
and the world. My body and I are ready for this amazing and happy journey with God by my side. My body and hormones are working in harmony to support both me and my baby. I am confident I will become a mother. I am an amazing mother to a very unique child. I am spiritually pure and powerful. Today is our day for a miracle. Affirmations throughout the journey. The Supreme Energy is my constant companion. We have created a divine being and will bring him or her into this world together. I love myself and accept myself unconditionally. I am God's special child. I trust the team of doctors treating me. I trust myself. I trust my body. I am grateful for all the love and support I receive. I am surrounded with divine energy. My treatment is successful. We are instrumental for bringing a divine being.